Okay, beta ji. We are starting with the chapter coal and petroleum, and we'll be studying about natural resources. Natural resources जो हैं, they are of two types: inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. As the name suggests, inexhaustible natural resource वो हैं जो कि unlimited है nature में, and they are not likely to get exhausted. जितना भी आप use करेंगे, they are not going to get finished. बट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी हमारे नेचर में प्रेजेंट है और जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन ओवर कंजम्पशन से दे विल गेट फिनिश्ड. एग्जांपल्स फॉर इनएग्जॉस्टिबल जो नहीं खत्म होंगे: एयर, सनलाइट, वाटर. दीज आर इनएग्जॉस्टिबल, जितना मर्जी यूज कीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू गेट फिनिश्ड. Whereas exhaustible natural resources जो हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जल्दी फिनिश हो जाएंगे क्योंकि दे टेक लॉन्ग टाइम टू गेट replenished. जो inexhaustible या नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो हैं जल्दी replenish हो जाती हैं, इसीलिए they are not going to get exhausted. We'll be studying about exhaustible natural resources और उनमें पहला है कोल. कोल जो है, it is a black hard combustible substance. हम लोगों ने already पढ़ लिया है कि it is used as fuel. It is used as fuel to run steam engines. It is used as fuel for generating power in thermal power plants, and it is used as fuel in various industries. अब how was coal formed? हमने पढ़ा है already. कोल जो है 300 million years ago पूरी अर्थ के ऊपर swamps थे, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े forests थे. Due to some natural calamity, maybe volcano, maybe earthquake, these got buried into the earth, and as the time passed, they were covered with layers of sand, silt, soil, gravel, or gradually they sank deeper and deeper inside the soil. और जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, the temperature inside the earth increases, the pressure from above is increasing, and gradually means very very gradually, over a period of 100 million years and more, they got converted into coal जो हम आज use करते हैं. ठीक है, so this is the story what we have discussed, and the process of slow conversion of dead vegetation into coal is called as carbonization. It is a very very slow process, and since it is formed from the remains of vegetation, it means once living plants and animals, so it is termed as fossil fuel, because उनके fuel से ही वो further जो है it is being converted into coal and petroleum, what we'll be studying. Now coal को अगर हम ऐसे ही extract करके use करते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई doubt नहीं, लेकिन coal को जब हम ऐसे ही use करते हैं तो उसके जो uses हैं वो limited हैं. लेकिन अगर हम कोल को बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर in the absence of air उसको heat करते हैं, then we can extract certain useful products from it, which is, this process is termed as destructive distillation of coal. और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कोल से वो है कोक, कोलतार और कोल गैस. अब हमें एक कोल के बजाय 3 चीजें मिली जिनको हम डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज में पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, एंड वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. फर्स्ट वन इज कोक. कोक जो है, if you can see in the figure itself, जो कलर है उसका डिफरेंट है. इट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर, इट इज पोरस एंड इट इज हार्ड. इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, and it is 98% or more of pure carbon only. कहाँ यूज करते हैं हम कोक को? कोक को यूज किया जाता है in the industry, steel industry, to manufacture steel. बहुत सारे extraction of metals में भी as a fuel कोक को यूज किया जाता है. Then आया कोल तार. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज कोल तार. कोल तार जो है वो डार्क ब्लैक ऑयली लिक्विड है. इसकी अनप्लेजेंट स्मेल है, बड़ी गंदी स्मेल होती है, एंड लेकिन ये बड़ा ही यूजफुल सब्सटेंस है क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ अगेन 200 सब्सटेंसेस. ये हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें मिल रहा है कोल से. ठीक है, और कोल में से कोलतार मिल रहा है, और कोलतार का आगे इट इज अ मिक्सचर. तो आप सोचिए कि अगर हम खाली कोल यूज कर लेते, रॉ कोल यूज कर लेते, तो हमारी कितनी सारी चीजें जो है हम नहीं उसको ऑब्टेन कर पाते. लेकिन जब हमने उसको प्रोसेस कर दिया और कोलतार मिला, कोलतार आगे हम 200 सब्सटेंसेस है बनाए जिससे हम वैरायटी ऑफ थिंग्स हम बना सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड है, ड्रग्स है, डाइस है, पेंट्स है, परफ्यूम्स है, एक्सप्लोजिव्स है. सभी के लिए जो है रॉ मटेरियल यूज किया जाता है कोलतार. एंड हमको बहुत पॉपुलरली पता है, इन चीजों के बारे में भले ही ना पता हो, लेकिन हमने देखा हुआ है जब रोड बनती है तो वहां पर जब सरफेसिंग करते हैं तो ये ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड सा डालते हैं जिससे कि बाइंडिंग हो जाती है और रोड को स्ट्रेंथ मिलती है.
The third one is coal gas. Coal gas produce हुई है during processing of coal to get coke. ये highly inflammable gas है और it is earlier it was used for street lighting purposes. अब लेकिन it is used as an industrial fuel and for cooking. Street lighting के लिए नहीं use होता है. Then second one natural resource what we have to study is petroleum. Petroleum और natural gas दोनों एक साथ हमें मिलते हैं and again these are formed, these जो oil या gas के reserves हैं ये they are formed under the sea bed or river bed or ocean bed. कहाँ पर मिले हमें, कैसे बने ये? तो जो sea plants और animals थे once they were dying, we are talking about a period about 300 million years ago, जो आज हम petroleum और gas को tap कर रहे हैं from the earth, that was the process for its formation started around 300 million or 400 million years ago. तो जितने plants और animals seas, ocean, rivers में they die and they fall down to river bed या ocean bed या sea bed. अब उसके ऊपर क्या होता है कि धीरे धीरे layers and layers of silt and sand उसके ऊपर deposit होती रहती है over million of years of period of time. ये जो remains है they get deeper, sink deeper and deeper into the earth. उसके ऊपर layers of sand and silt होती है और अंदर जैसे जैसे वो deep जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, तो हीट इज गेटिंग मोर एंड प्रेशर तो ऊपर से बहुत ज्यादा पड़ ही रहा है, तो इट इज टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस. तो जब हम ड्रिल करते हैं थ्रू दीज oceans and rivers into the ocean and river bed, then we can reach to this deposits of oil and गैस. अब ये देखिए कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट जो है दे आर फाउंड अंडर द अर्थ और जो इफ यू कैन सी इट दे आर फाउंड अबव द रिजर्वॉयर बॉक्स. ठीक है ना, ऑयल गैस जो है अबव द रॉक्स में मिलते हैं, वाटर के ऊपर ऑयल, ऑयल के ऊपर गैस. देन पेट्रोलियम भी अगेन अगर हम उसको एज सच क्रूड पेट्रोलियम जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाईली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो वो हमारा बहुत वेस्ट हो जाता है. लेकिन क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो अपने आप में एक डार्क ऑयली लिक्विड है और अनप्लेजेंट ओडर भी है उसका, प्लस इट इज अ मिक्सचर ऑफ ओवर 300 सब्सटेंसेस. तो अगर हम सिर्फ क्रूड पेट्रोलियम यूज करते हैं इट्स ऑफ नो यूज, तो हमें इट इज बेटर टू यूज इट, रिफाइन इट. तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग और सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, इसको हम प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं. और ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ना, that is based upon the difference in the boiling point of the different fractions, or it is separated, ये fractions जो होते हैं they are separated by the process of fractional distillation, and इस process को हम refining कहते हैं. तो ये कुछ important products आपकी बुक में listed है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गया, LPG जिसको हम कहते हैं, it is used as a fuel for home and industry. Then it comes petrol. Petrol जो है वो motor fuel की तरह use होता है, aviation fuel की तरह use होता है. It is also used as solvent for dry cleaning. Kerosene जो है fuel for stoves and lamps and jet aircrafts के लिए use होता है. Diesel जो है it is fuel for heavy vehicles, heavy motor vehicles के लिए use होता है. Electric generators में use होता है. Lubricating oil for lubrication. Paraffin wax जो है that is used as an ointment. ऑइंटमेंट्स में यूज होता है, कैंडल्स बनाने में काम आता है, वैसलीन बनाने के काम आता है. बिटुमेन जो हमें पता है तो इट इज यूज्ड टू यूज्ड इन पेंट एंड फॉर रोड सर्फेसिंग. अब आ गया थर्ड इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दैट इज नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, लेयर्स बिटवीन द लेयर्स और अबव और along with the petroleum deposit. अब ये बड़ा convenient fuel है. Convenient fuel किस लिए है? क्योंकि ये जो it does not produce any harmful gas, smoke, कुछ नहीं produce कर रहा है. Then it is also highly inflammable, बहुत जल्दी burn हो जाता है. इसकी storage जो है बहुत easy है. It can be supplied through pipelines, जैसे कुछ cities जैसे वडोदरा हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पर ये थ्रू पाइपलाइन भी सप्लाई हो रहा है. और एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसको यूज कर रहे हैं. इट इज बीइंग रिप्लेस्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड बसेस and it is used in manufacturing of many chemicals and fertilizers also. तो CNG के बड़े important uses हैं जो कि and it is very clean fuel, does not leave any residue, burns with a clear flame.
तो और जल्दी बर्न हो जाता है, तो ये इट इज रिप्लेसिंग डीजल नाउडेज। देन व्हाट आर द यूजेस? अब हमने 3 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हमने पढ़ लिया कि इट इज एग्जॉस्टेबल और जल्दी खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, जिस रेट पे ह्यूमन इसको कंज्यूम कर रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मोर इनके ओवर यूज से क्या हो रहा है, हमें पता है कि दे आर प्रोड्यूसिंग हार्मफुल गैसेस, दे आर प्रोड्यूसिंग रेसिड्यूज। अब इससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है और ये खत्म भी हो जाएंगे। तो व्हाट शुड वी डू सो दैट वी सेव आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड वी सेव द फ्यूल्स ऑल्सो? तो इसके लिए हमें सेव करना पड़ेगा फ्यूल को, तो इससे हमें स्मार्टली ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए पीसीआरए ने कुछ रूल्स बताए हुए हैं। जब आप व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं तो यू हैव टू ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। इंजन को स्विच ऑफ कर दो एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए, अगर टायर प्रेशर ठीक है तो फ्यूल कम कंज्यूम होता है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल बहुत जरूरी है। ऐसे टिप्स लेने पे हम लोगों का जो डीजल पेट्रोल है वो बचेगा। नेक्स्ट आ गया कि हम बचा तो रहे हैं पर उसके साथ साथ में कुछ हम ऐसे डेली लाइफ एक्टिविटीज भी करें जिससे कि हम फ्यूल को बचा सके। उसके लिए पहली जरूरी चीज है कि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर ले, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ये तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, मतलब हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के साथ साथ अगर हम इनको यूज करते हैं तो इट इज वेरी गुड। दूसरी बात, अगर हम इनका कंजर्व करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो जो पास की प्लेसेस है, नियर बाय प्लेसेस पे, इफ यू कैन वॉक डाउन, इफ यू कैन गो बाय साइकिल, तो हम एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और फ्यूल को भी बचा लेंगे, फॉसिल फ्यूल को भी बचा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है, पर्सनल व्हीकल्स छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रोज, ट्रेन, बसेस, एरोप्लेन से हमें ये यूज करने चाहिए। और अगर हम एक ही प्लेस में, बहुत सारे लोग एक ही प्लेस में, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेज हो गए, बहुत लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को कार पूलिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम व्हीकल को पूल कर लेते हैं तो ट्रैफिक भी कम रहेगा, फ्यूल भी बचेगा, एनवायरनमेंट भी बचेगा। सो दीज आर द डिफरेंट ways to save our fuel, save our environment also. Now quickly we'll share the questions what are there in the assignment, and then we will come to the next chapter. हाँ जी बेटा जी, first one is name the process by which coke is processed from coal. Destructive distillation. Very good. Distillation. Very good. Destructive distillation of coal. Fuel which is used in heavy automobiles. Petrol. Diesel. Petrol not used, diesel use होता है. Too exhaustible. ये only raise your hand and speak out, that would be better बेटा. ऐसे सारे बोलेंगे तो जिनको नहीं पता है आंसर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी. तो टू एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज माय डियर साक्षी, 8th thread, प्लीज अनम्यूट. प्रकट होइए बेटा. साक्षी जी प्रकट नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा. सचित जी, टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. Petrol and coal are two exhaustible natural resources, and non-exhaustible हाँ जी are हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी सचित. क्रिश आप बता सकते हो inexhaustible natural resources? Ma'am, air and sunlight. Very good. One use of lubricating oil. Salil? Ma'am, lubricating oil can be used in machineries. Yeah, for lubrication. ठीक है.
अब इसमें बी पार्ट मिसिंग है, आपको बहुत सारे टेबल दिया हुआ है दैट यू हैव टू लर्न इट. देन व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल? मेन कॉम्पोजिशन फॉसिल फ्यूल की क्या है? remains of dead plants and animals. नहीं, कार्बन. हाँ जी, कार्बन. कार्बन एंड हाइड्रोजन. Carbon. Acid rain is caused by mixing of harmful gases produced by burning of fossil fuels. दो such gases का नेम लेने आपने. कौन से दो gases हैं? Sulfur dioxide and Sulfur dioxide and carbon dioxide. Carbon Dioxide. monoxide and sulfur dioxide. शाबाश जी, शाबाश. nitrogen dioxide भी also when बिल्कुल ठीक है बेटा. Now these questions belong to the chapter combustion and flame. तो question combustion and flame को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. I could not locate the PPT what I had shared with you, so we'll quickly revise. Combustion means the process of burning is termed as combustion, and that means combining a substance with oxygen to produce heat and light. That is called as combustion. Combustion जो है the substance which catches fire उसको combustible substance कहते हैं, उसको fuel भी कहते हैं. Combustion जो है substances can be basically divided into two, combustible substance and non-combustible substance, based upon whether they can catch fire or they cannot catch fire. So combustible substances like paper are there, then petrol, diesel, all these are combustible. Dry gas, grass is combustible. When compared to non-combustible substances like stone, maybe metal, these are non-combustible substances. Now, what are the conditions for combustion? Combustion की conditions क्या है? Combustion की conditions है that first thing, presence of fuel. Fuel होगा तो combustion होगा. Second thing, that presence of air or oxygen. Air or oxygen combustion नहीं हो सकता. और third important thing is attainment of ignition temperature. Ignition temperature क्या है? It is the lowest temperature or the minimum temperature at which a substance catches fire. और different substances का ignition temperature अलग-अलग होता है. Different होता है. A paper has a low ignition temperature, it catches fire easily, whereas wood has high ignition temperature, it catches fire slowly. It catches fire at a very high temperature. So coming to know about ignition temperature, we have to know what are the different types of combustion. There are three different types of combustion. One is rapid combustion, that means immediately the substance catches fire and starts burning, जैसे कि paper हो गया. Then there is spontaneous combustion. कुछ substances ऐसे हैं जो कि आप उनको they do not require any external conditions to catch fire. They catch their fire on their own, जैसे forest fire हो गया, या कुछ some types of crackers, when pressure is applied to them, they catch fire and start burning. Then third one is explosion. There are certain substances which burn accident immediately and burn with lot of sound, heat and light. तो उस ऐसे को हम term करते हैं explosion, जैसे कि है crackers. Now, अगर किसी substance ने catch fire कर ली है, if a substance has caught fire, then what should be the methods to stop that fire? तो पहला काम है कि you have to cut off the supply between the combustible substance and air. अगर वो बंद हो जाएगी, because air के बिना combustion नहीं होगा. We have already studied this as an activity कि अगर combustible substance को burn करना है तो उसको air या oxygen की presence की जरूरत है. तो अगर हम उसका contact बंद कर देंगे तो fire अपने आप stop हो जाएगी. दूसरा, अगर हम burning fuel का अगर हम ignition temperature मतलब high कर देते हैं तो भी, ठीक है, it will not catch fire, it will stop, the fire will stop. तो दो methods हैं. एक हम बहुत commonly use करते हैं, that is water. Water से क्या होता है, ignition temperature भी low हो जाता है, it also cuts off the supply of oxygen also. तो इससे बहुत commonly हम fires को stop कर सकते हैं. Sand भी use कर हम soil sand को भी हम use कर we can cut off the supply of oxygen and the burning substance, तो भी वो काम हो जाएगा. लेकिन सभी तरह की फायर्स के लिए हम वाटर नहीं यूज कर सकते, स्पेशली इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होती हैं वी नो दैट वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, सो इट कैन कॉज हार्म टू द पर्सन, सो हम वहां नहीं यूज करते हैं. ऑयल के साथ भी हम नहीं यूज करते हैं वाटर, क्योंकि
oil जो है, we know that water will settle down and oil will keep floating on top and the fire will not stop. तो ऐसे दो केसेस के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे बर्निंग सब्सटेंस की जो फायर है उसको बर्न करने के लिए we'll use carbon dioxide. Carbon dioxide is a very effective method of extinguishing fire because carbon dioxide does not support burning. It does not get burnt, it does not support burning also. So it can be used, it covers the burning substance or fuel like a blanket and hence cuts off the supply and brings down, it also cools down the burning substance and hence stops the fire. Now, we have seen in case of different activities that some substances burn with flame and some substances do not have flame but they burn. तो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं? वो सब्सटेंसेस हैं which vaporize and if they vaporize they will form a flame. Flame जो है आपने देखा है the extent visible part of the fire जो कि हमें luminous होता है और फ्लेम के तीन पार्ट्स हैं, बेसिकली 3 parts of flame are there. First one is outermost zone. Outermost zone जो है वो non luminous zone है. Non luminous because it is not visible. It is very thin blue color flame, लेकिन इसमें combustion maximum है क्योंकि supply of oxygen maximum है. Second one is the middle zone जो कि luminous है, bright होती है, yellow या orange होती है और हमें दिखाई देती है और ये बहुत बड़ा region होता है, लेकिन इसमें partial combustion होता है क्योंकि वहां पर supply of oxygen is less. एंड थर्ड वन इज इनरमोस्ट जोन जो कि विक के बिल्कुल पास होती है, बर्निंग सब्सटेंस के बिल्कुल पास होती है एंड इट इज डार्क जोन, नो कंबशन जोन, ब्लैक इन कलर क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई जीरो है, देयर इज नो कंबशन अकरिंग देयर और वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंबशन अकरिंग देयर. तो ये डिफरेंट और टेम्परेचर इज कूलेस्ट, इट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो ये 3 पार्ट आपने देख लिए अबाउट कंबशन. अब आपने ये भी जानना है कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को बर्न करना है तो हमें उसे आउटर मोस्ट जोन में रखना पड़ेगा तो होगा. जैसे कि जो जूलर्स होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन को यूज कर मेटल्स को मेल्ट करके उनको डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं. तो अब आपने ये याद रखना है कि ये दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव टू स्टडी इन चैप्टर combustion and flame. Now coming to the questions which are present, which are in the assignment. Why do different substances start burning at different temperatures? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए पहले. मैम हम डिस्टिल्ड वाटर को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर्स को कंट्रोल करने में क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी. रीजन बताते हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर को भी हम यूज नहीं करेंगे. पहली बात तो इतना सारा डिस्टिल्ड वाटर को इस तरह से वेस्ट करना इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल. दूसरी बात, डिस्टिल्ड वाटर ऐसे तो आपको मिलता नहीं, डिस्टिल्ड वाटर हमें फॉर्म करना पड़ता है. ओनली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर, that is as good as distilled water. लेकिन रेन वाटर में while the rain is falling आपको पता है कि उसके जो सस्पेंडेड गैसेस हैं, कुछ impurities हैं which are present in the air or environment gets mixed, तो वो भी प्योर नहीं रह जाता है, डिस्टिल्ड नहीं रह जाता है. तो पहली बात तो डिस्टिल्ड वाटर हमें फॉर्म करना पड़ेगा टू यूज दैट. तो दूसरी बात है कि इतना प्रोसेस में हम इट रिक्वायर्स अ हेवी प्रोसेस, तो हम उसको बना रहे हैं और इस तरह से वेस्ट करें, दैट्स ऑफ नो यूज. हम डिस्टिल्ड वाटर को और बहुत जगह यूज करते हैं, बैटरीज में यूज करते हैं, जो हमें इन्वर्टर बैटरीज होती है वहां पर हम यूज करते हैं, या हम केमिस्ट्री लैब में हम यूज करते हैं, या इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई जो मेडिसिन बनाती हैं वो वाली इंडस्ट्रीज, या फिर और मेडिकल पर्पसेस के लिए जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना तो उसके साथ कई बार ऐसे पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होता है, उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाकर फिर हम लगाते हैं. तो डिस्टिल्ड वाटर के वहां यूजेस हैं जहां पर हमें यूज करना चाहिए. डाउस करने के लिए फायर हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है. लेकिन मैम अगर हम करना चाहें तो वो फिर कंट्रोल हो जाएगी ना फायर. आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए टू डाउस द फायर. हम वाटर को तब यूज करते हैं हमारे एक अगर इतनी सी जगह पे हमारा फायर लगी तो उसके लिए हम पानी डाल देते हैं, दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन अगर हमारी कहीं लोकेलिटी में आग लगी है, किसी घर में आग लगी है, तो इतना हम डिस्टिल्ड वाटर नहीं ला सकते क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज स्पेशली फॉर्म्ड इन सर्टेन काइंड ऑफ सेटअप, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, लैब्स में बनाया जाता है, तो वहां से इतना सारा पानी हम नहीं ले पाएंगे. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी.
So let us coming back to question, why do different substances start burning at different temperatures? Can anyone help me in this finding or letting the answers know? Harshit? We're running. Because they have different ignition temperatures. They have different ignition temperatures, so they burn at different temperatures. Calorific value, can anyone define calorific value? Ma'am, amount of heat produced in the burning of 1 kg of fuel is known as calorific value. Shabash. Ignition temperature, Paneet? The lowest temperature